Yes, students. So in previous class we were discussing about the work. Okay, so we will continue with the work today as well. So I will start with the work again because we started with the work, but I think the period was over, so that's why we could not explain it properly. So I will start with the work again. Okay, so that you can understand it in a better manner. Okay. So as we were discussing about the work, okay, so here we are talking about the pressure volume work. Okay, here we are talking pressure volume work. Just a minute. Pressure volume work. Okay. Yes. So we were discussing about the work, pressure volume work. Here we are discussing about the pressure volume work. And as we discussed that, when we are talking about pressure volume work, so it means that suppose we have a container and in this container we have filled a gas, and over this gas we have a piston. Okay, over this gas we have a piston, and one more thing we can understand that this piston is frictionless piston. Okay, and the surface area of this piston is A. Okay, it is A centimeter square. We can take this is the surface area of this piston. Okay, and the distance covered by the gas when it expands or when it contracts. So the distance we can consider that it is dl. हम ये मानते हैं कि अगर मान लीजिए गैस एक्सपेंड कर रही है, if gas is expanding, the distance covered by this gas will be dl. dl is the distance covered by gas. Okay. So as we know that work equals to force into displacement. Force into displacement. Okay, force into displacement. So force is F and displacement here we have seen that it is dl. Okay, displacement is a dl. But we know that pressure equals to force upon area. And what should be the force? Force should be pressure into area. Okay. So we can place the value of F here. If I place the value of F, then it will be pressure into area into dl. Okay. And dl is the length and A is the area. So if we combine the length and area, okay, area multiplied by length will be equal to volume. So we can write it as length is continuously changing. So here we can write it change in volume. Okay. So this is the formula which we can use for work. ये formula हम work के लिए use में ले सकते हैं. ठीक है. One more thing which we have to remember that suppose the change in volume is from V1 to V2. हम ये मान लेते हैं कि जो volume में change हो रहा है, जैसे ये तो हमने area ले लिया था. अब this volume is V1 and this is V2. So volume is changing from V1 to V2, or we can take it VI भी ले सकते हैं, initial volume, and this is final volume. We can write it like this also. ठीक है, initial से final या V1 से V2. तो यहाँ पर आप देखिए कि जब ये इस तरह से चेंज हो रहा है और we want to find the change in volume. So the volume is from V1 to V2. The change in volume is V1 to V2. So V1 से V2 के बीच का जो वॉल्यूम चेंज है उसको आप यूँ लिख सकते हैं, it will be V2 minus V1. ठीक है, and it can also be written as del V. Okay, so work can be written as pressure into del V. तो del V किसके लिए यूज में आता है, समझना मेरी बात को ध्यान से. Del V is used when the change in volume is greater and dV is used when the change in volume is smaller. तो यहाँ मैंने dV यूज में लिया है. ठीक है, डेविएशन इन वॉल्यूम. तो जो वॉल्यूम में चेंज आया है यहाँ पर ये स्मॉल चेंज है, बट अगर ये स्मॉल चेंज हम ये कह रहे हैं कि V1 से V2 तक हम टोटल काउंट कर लेते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमारे पास हम ये मान लें कि वो वॉल्यूम कितना आपके पास del V है सपोज. So yesterday we discussed a thing that this is the formula of work, but we don't use this formula. Actually we use this formula with negative sign. It is a sign convention. ये sign convention होता है, इसलिए हम इसके साथ negative sign यूज में लेते हैं. ठीक है, लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले, before explaining that thing, एक चीज समझ लें कि वर्क दो तरह का होता है. ठीक है, एक तो वर्क होता है, अगर हम वर्क की बात कर रहे हैं तो एक तो वर्क होता है वर्क डन बाय
done by system on, okay, surrounding. Okay, one work is the work done by system on surrounding. If system is working on surrounding, that means expand हो रहा है यहाँ पर. When there is a expansion of gas, so in that case we say that it is a work done by system on the surrounding. Yes, so in this case the work will be negative. जो work होगा it will be negative. Work will be negative. And second case is work done by surrounding on system. Okay, this work will be positive. One more thing which we have to remember, this work is negative when system is doing work on surrounding. So when system is doing work on surrounding, that means gas is expanding. भाई हम ये मान रहे हैं कि इसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है. सपोज गैस इज फिल्ड इन दिस सिस्टम. सो दिस इज सिस्टम. ठीक है. व्हेन दिस गैस एक्सपेंड, देन इट विल अप्लाई प्रेशर ऑन अपवर्ड, एंड अपवर्ड वी हैव सराउंडिंग. ओके, अपवर्ड वी हैव सराउंडिंग. ऊपर की तरफ हमारे पास सराउंडिंग है, तो सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है. सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग. तो यहां पर ये भी चीज ध्यान रखें कि उस समय एक्सपेंशन हो रहा होगा. एक्सपेंशन, when there is a expansion, जब expansion हो रहा है किसी गैस का, so in that case we can say that work is negative. Okay, and when there is a contraction, जब contraction हो रहा है, that means surrounding is working on system. Surrounding system पर work कर रही है. ठीक है, so that work will be positive. Okay, so I think this thing is clear to you. अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला है, वी हैव दिस फॉर्मूला फॉर वर्क इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क. बट वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ वर्क, वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव. सो हाउ कैन वी डिफाइन दैट दिस वर्क इज नेगेटिव, दिस वर्क इज पॉजिटिव यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो उस चीज को एक बार मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ. लेट मी रफ इट. Okay, let's see. So we know that there is a work of pressure volume work. Okay, and formula for this work is minus P del V. Okay, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो नेगेटिव साइन हमने लगाया है यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखें. नेगेटिव साइन इज ड्यू टू साइन कन्वेंशन. ये साइन कन्वेंशन की वजह से है, which makes a formula appropriate for expansion and contraction, जो कि expansion और contraction दोनों के लिए इसको appropriate करेगा. ठीक है, so we can divide this work into two parts. इस वर्क को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. एक तो हम कह रहे हैं एक्सपेंशन, जिसका भी अपन ने जिक्र किया था, एक्सपेंशन. वन इज एक्सपेंशन वर्क एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन वर्क, कॉन्ट्रैक्शन. While we are talking about expansion, so what happen in expansion? Suppose we have a container, and in this container we have gas filled up to here, and this time the volume is V1. Okay, when we reduce the pressure from outside, the volume reach up to V2. Okay, this is piston, we can say. So the volume covered or the volume change is V2 minus V1. So V2 minus V1 equals to del V. But we know that here the value of del V, इसको इधर लिख देता हूँ, V2 is greater than V1 है, and if we subtract V1 out of V2, then the value will be positive. Positive del V value आएगी आपके पास, यानी change in volume is positive. Now we have this formula, work equals to minus P del V. Now we can use the positive value of del V, because we know that during the expansion the change in volume is positive. Okay, so that's why I have used the positive sign. So here again P del V, then the work we will get the negative work. So this work will be negative. Or as we have already discussed that when there is an expansion in gas, when there is an expansion, the work comes out to be negative. Expansion के time पर हमारे पास जो work आता है, it comes out to be negative. Now let's discuss the contraction. What happen at the time of contraction? इसमें क्या होगा? Suppose we have this
container, and in this container we have gas filled up to here. Gas यहाँ तक भरी हुई है. This is a piston. Okay, and the volume is V1. This time this volume is, initial volume is V1, and we increase the external pressure. We increase the external pressure. Okay, it is greater than internal pressure. अंदर की तरफ जो प्रेशर है वो इंटरनल है, बाहर की तरफ जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल है. So if external pressure is greater than internal pressure, obviously the volume will decrease, और volume decrease होकर के suppose V2 तक हो जाएगा. ठीक है. So in this case V1 is greater than V2. ठीक है. If we subtract the final initial volume out of final volume, we will get the negative value, negative V. नेगेटिव V इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप V2 में से V1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड वी नो दैट V2 इज लेस एंड V1 इज ग्रेटर. तो V2 में से जब मैं V1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वी विल गेट द नेगेटिव V. दैट मींस द चेंज इन वॉल्यूम विल बी नेगेटिव, कि वॉल्यूम घट रहा है इसलिए चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव. ओके, सो इन दिस केस वी कैन राइट वर्क equals to with sign convention P del V, but we know that the work is negative, change in volume is negative here, so W will be minus P minus del V. We can write it like this, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है. So minus minus plus, so work P del V. So here we have obtained the positive work. So work will be considered as positive when there is a contraction of gas, because at the time of contraction of gas the surrounding will apply pressure on the system. ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास सिस्टम है, गैस जो है इट इज अ सिस्टम, और बाहर से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज बाय सराउंडिंग. ठीक है, व्हेन सराउंडिंग वर्क ऑन सिस्टम द वर्क इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव. ओके, जस्ट a minute. Yes, so let's continue. So I think it is clear to you when the work is positive and when the work is negative. When there is expansion or when system work on surrounding, then the work will be negative. When there is a contraction and surrounding work on system, the work will be positive. So there are two type of work, negative and positive. Okay. So right now the work which we discussed was irreversible work. Okay, there are two types of work. We can divide the work in two types. One is reversible, one is irreversible, and one is reversible. ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा, the formula which we discussed right now was for irreversible work. P equals to W equals to minus P del V. This is the formula for irreversible work. Why I called it irreversible work? Because here you can see the change in volume is greater. ठीक है, the change in volume is great, मतलब काफी ज्यादा वॉल्यूम में चेंज देखने को मिल रहा है क्योंकि मैं डेल लगा रहा हूँ वहां पर. ठीक है, तो वो हमारे पास रिवर्सिबल वर्क के, इरिवर्सिबल वर्क के लिए which takes place in a one step, which takes place rapidly. ठीक है, which cannot be reversed. ठीक है, जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, जो एक ही बार में हो रहा है, बड़ा चेंज हो रहा है. ठीक है, वॉल्यूम में चेंज ज्यादा हो रहा है. सो दैट टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड इरिवर्सिबल वर्क. सो व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट द रिवर्सिबल वर्क, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें एक छोटी सी डेरिवेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, एंड द फॉर्मूला विच वी विल गेट आउट ऑफ डेरिवेशन विल बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल. उसको हम न्यूमेरिकल के लिए भी यूज में ले सकते हैं. तो नेक्स्ट व्हाट वी आर सीइंग, तो हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल वर्क की. तो हेडिंग डाल देता हूं मैं. तो लेट्स सी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्क डन इन isothermal reversible expansion of ideal gas. Okay, so here we are discussing about the expansion of ideal gas, reversible expansion of ideal gas. Okay, कोई आइडियल गैस आपके पास कंटेनर में है और वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रही है. ठीक है, आइसोथर्मल मींस वी हैव टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट व्हाइल द गैस इज एक्सपेंडिंग. ठीक है, तो उस समय जो रिवर्सिबल वो वर्क करेगी उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट
करेंगे। तो सपोज दिस वर्क कैन बी शोन लाइक दिस, W इक्वल्स टू माइनस P डेल dV लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखो यहां पर मैं ये एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा कि जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, एक फोर्स लगा रहा है। अगर मैं उस फोर्स को एक्सटर्नल ले रहा हूं, सपोज एक्सटर्नल डॉट dV, मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है और इस फॉर्मूले मैंने लिखा है कि यहां पर ये सपोज एक्सटर्नल फोर्स है और dV जो है चेंज इन वॉल्यूम है, बट क्योंकि मैंने D लगाया है दैट मीन इट इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि रिवर्सिबल की जब हम बात करते हैं तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हेन देयर आर मेनी स्मॉल चेंज एंड कलेक्टिवली द वर्क इज रिवर्सिबल वर्क, तो छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं उनको अपन लास्ट में उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास रिवर्सिबल टोटल वर्क आ जाता है। तो रिवर्सिबल वर्क जो है छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, छोटे छोटे पीसेस में होता है, तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम भी बहुत स्मॉल लिया है अपन ने। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो मैंने PEX लिया है, PEX का है ना, EXP का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, देखिए इसमें ये हो सकता है कि आपके पास सपोज जो इंटरनल प्रेशर है उस इंटरनल प्रेशर से जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना ज्यादा हो, DP ज्यादा हो सकता है। DP मतलब स्मॉल प्रेशर जो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, या अगर मैं नेगेटिव लगा देता हूं तो थोड़ा सा कम हो सकता है, मतलब कम या ज्यादा दोनों में से कुछ भी होना पॉसिबल है। तो मैं जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको इंटरनल प्रेशर की टर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि गैस के अंदर जो सिस्टम है दैट इज अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग पर प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो इंटरनल प्रेशर अप्लाई हो रहा है सराउंडिंग पर। तो यहां मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, W इक्वल्स टू माइनस PINT इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस DP। ठीक है, और उसके बाद में आप इसको डॉट dV यू लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने केवल एक्सटर्नल प्रेशर की जगह पर इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस DP लिखा है। ये समझ में आ गया होगा आपको क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है इंटरनल प्रेशर से DP ज्यादा हो सकता है इंटरनल प्रेशर से DP कम हो, तो इट कैन बी यूज्ड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द साइन। ठीक है, अब W इक्वल्स टू इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं देन माइनस P इंटरनल प्रेशर dV प्लस DV डॉट dV यू लिखा जा सकता है। अब जरा गौर करना, देखो DP एंड dV बोथ आर, दिस इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर एंड दिस इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, एंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्मॉल चेंज विल बी नेग्लिजिबल। ओके, इट विल बी नेग्लिजिबल, तो ये नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल कम होगा, न के बराबर होगा, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, क्योंकि दोनों D आ रहा है, मतलब बहुत स्मॉल डेविएशन आ रहा है। तो यहां पर W किसके इक्वल हो गया, माइनस P इंटरनल प्रेशर डॉट dV इसके इक्वल हो गया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि यहां पर हम लोग जब रिवर्सिबल चेंज कराते हैं या हम कहें कि रिवर्सिबल वर्क करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ये मान रहे हैं कि जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ठीक है, वो बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है और उन सारे स्टेप्स को हम लोग एक साथ कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर तो आपके पास में कांस्टेंट है, ठीक है, इसको बाहर ले रहा हूं मैं, मतलब P या इसमें D लिखा हुआ है, दैट मीन चेंज इन वॉल्यूम, इसमें D नहीं है, दैट मीन इसमें चेंज शो नहीं कर रहे हैं अपन। तो इंटरनल प्रेशर, और इसको ले लेता हूं मैं सपोज VI से लेकर के VF तक, ठीक है, दैट मीन इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर तक जितना भी चेंज हुआ है वो मैंने ले लिया है, और DV का मैं इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, तो उस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस P। ठीक है, अब मैं इसको P लिख रहा हूँ, IN वो अंडरस्टूड है कि वो इंटरनल प्रेशर से बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये इनिशियल और फाइनल है। आप इनिशियल को अगर V1 मान लेते हैं, आप ये मान लेते हैं कि जो आपके पास इनिशियल प्रेशर है वो V1 है, और जो फाइनल प्रेशर क्या वॉल्यूम सॉरी और जो फाइनल वॉल्यूम है उसको मैं V2 ले लेता हूं, तो इट कैन बी रिटर्न एज, इसको जो लिखा जा सकता है V1 V2 एंड DV। ठीक है, अब एक छोटा सा काम और करेंगे, क्योंकि ये आइडियल गैस के लिए है, तो आपको ध्यान होगा अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है ना, वी स्टडीड अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमने उसमें पढ़ा था फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, वी स्टडीड दैट PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो अगर मैं केवल P को बाहर लेता हूं, P इक्वल्स टू nRT अपॉन V, इट कैन बी रिटर्न एज, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी
रिटर्न एज। तो यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यू p की वैल्यू यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो इसको कैसा दिखाई देगा देखो, तो इट विल बी लाइक दिस, w इक्वल्स टू nRT अपॉन v and v1 to v2 and dv upon v, it can be written as, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद अगला स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। तो अब देखो v जो है, सॉरी v यहाँ बाद में लिखेंगे, अभी तो dv है। तो इस v को अगर मैं यहाँ अंदर की तरफ लेता हूँ, इंटीग्रेशन के अंदर की तरफ लेता हूँ, तो dv अपॉन v का इंटीग्रेशन कराएंगे अपन। तो यहाँ इंटीग्रेशन अगर कराते हैं तो w विल बी इक्वल्स टू n, अच्छा और नेगेटिव साइन भी है, nRT और इंटीग्रेशन v1 से v2 तक और dv अपॉन v का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसका जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो w इक्वल्स टू माइनस nRT, और इसका इंटीग्रेशन जो आएगा ना बेटा, ध्यान रखना, नेचुरल लॉग v2 अपॉन v1, इसको यूं लिखा जाएगा, नेचुरल लॉग v2 अपॉन v1। और जो नेचुरल लॉग होता है वो किसके इक्वल होता है देखें, तो थोड़ी सी जगह अपन को इसमें कम मिल रही है, मैं ऊपर से बेटा उसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, आगे सॉल्व करने के लिए। तो इसको यहां से रफ कर देते हैं, ओके, और एक लाइन रफ कर देते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब हमारे पास में ये है, एक बार वापस वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पर ऊपर, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमने जो वैल्यू अभी निकाली है, दैट इज w इक्वल्स टू माइनस nRT अपॉन, सॉरी nRT और नेचुरल लॉग v2 अपॉन v1, ओके, दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव ऑब्टेन। अब इस फॉर्मूले में देखो नेचुरल लॉग आ रहा है, एक्चुअली नेचुरल लॉग जो है इट इज इक्वल टू 2.303 10 बेस लॉग, इसकी वैल्यू जो होती है नेचुरल लॉग की, इट इज इक्वल टू 2.303 10 बेस लॉग, ठीक है। और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, then w equals to minus 2.303 nRT net log 10, चाहे बेस लगाए नहीं लगाए कोई इशू नहीं है, ठीक है, v2 अपॉन v1, क्योंकि बुक्स में कई बार उसको ओमिट कर दिया जाता है, v2 अपॉन v1। so this is the formula, ठीक है, this is the formula by which you can calculate the reversible work, ठीक है। इसको यूज में लेकर के आप रिवर्सिबल वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन इजिली कैलकुलेट रिवर्सिबल वर्क यूजिंग दिस फॉर्मूला। वन मोर थिंग, एक तो ये न्यूमेरिकल में काम में आता है, वन मोर थिंग, बिकॉज यू स्टडीड द रिलेशन ऑफ वॉल्यूम विद प्रेशर इन वाइल्स लॉ, आपने वाइल्स लॉ पढ़ा था, और वाइल्स लॉ में आपने पढ़ा था कि आपके पास में देखो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है फ्रॉम वाइल्स लॉ, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं P1 अपॉन P2 लेता हूं तो इट विल बी V2 अपॉन V1। तो एक चीज यहां पर क्लियर है, व्हाट, कि वी कैन रिप्लेस V2 अपॉन V1 बाय P1 अपॉन P2। तो इसको हम प्रेशर की टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो W इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log and P1 upon P2। So this is also the formula for reversible work, ठीक है। रिवर्सिबल वर्क के लिए आप इस फॉर्मूला को भी यूज में ले सकते हैं, बट इन टर्म ऑफ प्रेशर, इफ चेंज इन प्रेशर इज गिवन देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, इफ चेंज इन वॉल्यूम इज गिवन देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। So there are two formula which can be used to calculate the reversible work, ठीक है। रिवर्सिबल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम इन फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं, ओके। तो लेट मी रफ कर दे बेटा इसको, चलिए आगे चलते हैं। तो इट वॉज अबाउट द वर्क डन। सो लेट्स सी सम इंपोर्टेंट थिंग्स अबाउट द वर्क, देखते हैं, बात करते हैं। यस, जस्ट कर बेटा, यस। So let's this question. In this question, it is given that calculate the work done. So you have to calculate W. Okay, it is not given. When a gas is compressed by an average pressure, so pressure is given. Pressure is 0.50 atm. Okay, average pressure. इसे compress किया आपने, that means it is external pressure. So to decrease its volume, तो volume decrease किया गया है V1 से V2 तक. So volume V1 is 400. It is initial volume and final volume is 200 centimeter cube, ठीक है।
अब जैसे वो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था आई थिंक नीलम ने, कि अब इसमें ये हमें कैसे पता चलेगा कि यह एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, तो या हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेशर कौन सा लग रहा है, कौन किस पर वर्क कर रहा है। तो एक्चुअली अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते हैं तो इसने क्या कहा है, देखिए वैसे तो यहाँ दिया हुआ है कि कंप्रेस, ठीक है, गैस कंप्रेस हो रही है, एवरेज प्रेशर इतने एवरेज प्रेशर से, तो डेफिनेटली जब गैस कंप्रेस हो रही है तो इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर, एंड दैट्स व्हाई द वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो वॉल्यूम घट करके कितना हो जाएगा, 400 से 200। तो जो इनिशियल था आपके पास वॉल्यूम गैस का, दैट इज V1, और डिक्रीज होने के बाद जितना हो गया दैट इज V2, ठीक है। अब आपके पास जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज W इक्वल्स टू माइनस P del V, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। del V मीन्स V2 माइनस V1, एंड एक्चुअली दिस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। मुझे बताइए कौन सा वर्क है बेटा, इज दिस वर्क रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? कैन एनीबडी टेल मी? इरिवर्सिबल है ना, इरिवर्सिबल वर्क, बिकॉज द चेंज इन वॉल्यूम इज ग्रेटर, ठीक है, सीधे 200 से 400 पर चला गया, दैट मीन्स ये इरिवर्सिबल वर्क है। हाँ, और ओके, योर आंसर इज 100 जूल। ओके, लेट मी चेक इज इट करेक्ट और नॉट, आई डोंट नो, बट आई विल चेक, अभी चेक करेंगे इसको। तो मेरा कहने का मतलब अगर छोटे छोटे स्टेप में होता है तब तो वो रिवर्सिबल है, और अगर एक साथ एकदम से चेंज हो गया प्रेशर इंक्रीज करके, दैट इज इरिवर्सिबल। सो लेट्स फाइंड इट। सो W इक्वल्स टू, अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले चेंज इन वॉल्यूम देख लें कितना, दोनों ही देख लेते हैं। बोलिए बेटा। Just a minute. Just a minute. Yes, one minute. Let me repeat it once again. Actually, what happened here? We have हमें प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, दोनों, ठीक है, इनिशियल और फाइनल। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप नेगेटिव कन्वेंशनली साइन यूज में लेते हैं। तो प्रेशर इज 0.5, ठीक है, और V2 जो है आपके पास दैट इज 200 एंड V1 इज 400। जब आप सेपरेट कर रहे हैं तो इट विल बी माइनस 200, ठीक है, और माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और आपके पास जो वर्क आएगा दैट विल बी 100 सेंटीमीटर क्यूब ATM। अगर हम इसकी यूनिट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ATM आपका वर्क आ जाएगा, है ना। एक सेकेंड, टाइम भी अपना ओवर हो गया है। Let's continue. So this is our question or numerical which we have to do, and this numerical says carbon monoxide is allowed to expand isothermally and reversibly. So remember this thing here, it has written that isothermally and reversibly, that means reversible वाला formula we have to use, okay। And इसका वॉल्यूम देखिए, it changes from 10 meter cube to 20 meter cube. So first I think we should write the given values. The initial volume V1 is 10 meter cube and the final volume V2 is 20 meter cube. Okay, this is the volume. Solution देख रहे हैं हम, solution. Okay, at 300 Kelvin temperature, the temperature is 300 Kelvin. 300 Kelvin. Work obtained is W equals to 4.754 kilojoule. And calculate the number of moles, यानी आपको number of moles n calculate करना है। So can anybody tell me here the value of work is this, so is this negative work or positive work? Can anybody give me the answer? Is the given work negative or positive? It is negative work. Okay, yes, it is negative because here we can see कार्बन मोनोऑक्साइड वॉज अलाउड टू एक्सपेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सपेंड किया गया ना, अलाउ किया गया एक्सपेंड करने के लिए। इफ एनी गैस इज एक्सपेंडिंग दैट मीन्स इट इज अप्लाइंग, इट इज डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग, तो वो सराउंडिंग पर वर्क कर रही है, दैट सिस्टम वर्क ऑन सराउंडिंग, इट इज नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई द वर्क विल बी नेगेटिव। सो वी विल प्लेस माइनस वैल्यू हियर, तो यहाँ माइनस का साइन आप लगाएंगे, okay, and we have to calculate the number of moles. So what is the formula we have for it? W equals to minus 2.303 n RT log V2 upon V1. Okay, this is the formula which we can use. So what we have to do is we have given all the values, so we will use the values and solve it. Okay, so let's do. So the value of work is minus
4.754 इक्वल्स टू -2.303 एंड हमें कैलकुलेट करना है R. That is very important. Actually, R, as I already told you that the value of R is mostly 8.314. It is given mostly, given होता है, so the value of R is 8.314. Okay, it is given. So मैं यहाँ R लिख देता हूँ 8.314 into log and V2 upon V1. Now the value of V2, that is 20 meter cube. 20 meter cube upon 10 because the value of V1 is 10. Now solve it. तो देखिए यहाँ पर 0 से 0 को कैंसिल कर दिया है मैंने and let's do the next step. Okay, let's continue. तो देखिए इसमें -4.754 इक्वल्स टू, और आप n को बाहर ले लेता हूं मैं, चलो एक ये वाला स्टेप सॉल्व कर लेते हैं पहले. So -2.303 into n into 8.314 into, अब now remember one thing, the value of log 20 की जो वैल्यू होती है it is 0.3010. ठीक है, it is fixed value, it can be obtained from log table. ठीक है ना, तो log 2 की जो वैल्यू होती है, the value of log 2 is 0.3010. it is fixed. ठीक, so put the value 0.3010 and because we have to calculate the value of n, हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो माइनस से तो पहले माइनस कैंसिल कर दें और n को बाहर ले लें. then we will have 4.754 divided by 2.303 into 8.314 into 0.3010. ठीक है, और अगर आप इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, if you calculate the whole, the answer which you will get is 2.75 mole. तो आपको एक मिनट let me see, हाँ टेम्परेचर नहीं लिखा, सॉरी. ठीक है ना, we have also put the value of temperature, so temperature is 300 Kelvin, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ. ठीक है, it is 300 Kelvin. ये 300 Kelvin आपको यहाँ यूज में लेना है, 300 Kelvin. ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा 300 Kelvin. ठीक है, so ये चीज और ध्यान रखना, if temperature is given in degree Celsius, then you have to change it into Kelvin, and after putting the value in Kelvin you will find the number of moles. तो यहाँ तो मैंने number of moles तो कैलकुलेट किया, but it is not necessary that always given the number of moles. या ask about number of moles, work can be asked, number of moles can be asked, sometime volume can also be asked. ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कितना वॉल्यूम चेंज हुआ होगा उसका, तो you can calculate it. ओके, तो इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं, आगे चलते हैं. चलिए बेटा, एक्चुअली ये आइडियल गैस के लिए ही है. हाँ, आर भी पूछ सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर की क्या क्वेश्चन पूछा जाता है. बट दिस इज फॉर आइडियल गैस. अगर ये आप सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं एंड यू ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, then the value of R will come out to be 8.314. तो लगभग यही वैल्यू आएगी इसकी. ठीक है ना, ओके, बट इट इज अ कांस्टेंट. बट एक्चुअली ऐसा होता है कि कांस्टेंट नहीं पूछा जाता है. कांस्टेंट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट को नहीं पूछा जाएगा. कांस्टेंट के अलावा जो दूसरी वैल्यूज हैं दे आर मोस्टली आस्किंग क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन, चलते हैं थोड़ा सा आगे, और अब हम बात करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हीट. द नेक्स्ट पॉइंट इज हीट. Okay, so what is heat? Actually, heat is a form of energy. We know that heat is a form of energy. पहला पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, it is a form of energy. Okay, and बिल्कुल, and it can be observed when there is a difference of temperature between system and surrounding. अगर सराउंडिंग और सिस्टम के टेम्परेचर में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, देन आप कह सकते हैं कि वहां पर हीट का ट्रांसफर होगा. ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि हीट इज exchanged when there is difference of temperature
temperature between system and surrounding. Okay, when there is a difference of temperature in system and surrounding, then there will be exchange of heat or there will be transfer of heat. Okay, so heat can be represented by a symbol Q. heat को आप किससे represent करते हैं ये भी ध्यान रखें. It is represented by a symbol Q. इसको एक Q सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अगर आपको चेंज इन हीट शो करना है, ठीक है, चेंज इन हीट is denoted by del Q. उसको आप del Q से डिनोट करेंगे. ठीक है. So let's have an example how heat exchange from system to surrounding and surrounding to system. Sometime it happens, suppose we have, this is system. Okay, the temperature of system is T1 and this is surrounding. And the temperature of surrounding is T2. Okay, चारों तरफ surrounding है और T1 इसका टेम्परेचर सिस्टम का और T2 सराउंडिंग का टेम्परेचर है. If T1 is greater than T2, then the change of heat या exchange of heat या transfer of heat will be from system to surrounding. So heat जो है वो कहाँ flow करेगी? Heat will flow from higher temperature to lower temperature. तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि heat का flow जो होता है, ठीक है, flow of heat is always from higher temperature to lower temperature. हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमेशा हीट का फ्लो होता है. ठीक है. अब यहाँ हीट एक्सचेंज हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर हीट को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर डेल क्यू जो है, डेल क्यू, वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ डेल क्यू. एक्चुअली हीट का जो एक्सचेंज है ना बेटा, वो आप कैसे मेजर करेंगे? वो आप सिस्टम के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे कि सिस्टम से हीट अगर बाहर जाती है तो सिस्टम की हीट कम हो गई, दैट मीन्स चेंज ऑफ हीट नेगेटिव. ठीक है. अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, कम टेम्परेचर है, बाहर से हीट ले रहा है, ठीक है, तो सराउंडिंग से ले रहा है, दैट मीन्स जो हीट है वो अंदर आ रही है, तो चेंज ऑफ हीट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि हीट बाहर जा रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है, तो हीट जो है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव. एक्सचेंज ऑफ हीट या चेंज ऑफ हीट इज नेगेटिव. चेंज in heat will be negative in case heat is going outside. अगर वो बाहर की तरफ जा रही है. जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ी इंक फिल कर लूं, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं. जस्ट ए मिनट. ओके, let's continue. Let's take the another case, second case. In second case, suppose we have this system, okay, and the temperature of system is T1 again, and this T2 temperature is of surrounding. But this time suppose T1 is less than T2. Okay, T1 is less than T2. यानी आपके पास सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग की टेम्परेचर से ज्यादा है. ठीक है, कम है. सो वी नो दैट हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सो दैट्स व्हाई द हीट विल फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. द फ्लो ऑफ हीट विल बी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. तो अब हीट सिस्टम में ऐड हो रही है, हीट सिस्टम की तरफ आ रही है, तो आपके पास जो चेंज इन हीट है, सिस्टम की जो हीट है वो तो बढ़ जाएगी डेफिनेटली. तो यहाँ पर चेंज इन हीट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. ठीक है, चेंज इन हीट जो है वो पॉजिटिव होगा. तो एक सिंपल सा कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है, दैट मीन्स नेगेटिव. इफ हीट मूव फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, देन द चेंज ऑफ हीट इज पॉजिटिव. ओके, सो ऑब्वियसली ऑलवेज you have to calculate the change of heat
इन टर्म ऑफ सिस्टम, सिस्टम की टर्म में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। सिस्टम के पास आ रही है तो चेंज इन हीट इज पॉजिटिव, इफ इट इज मूविंग आउट फ्रॉम द सिस्टम द चेंज इन हीट इज नेगेटिव। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब दूसरी बात जो हम हीट के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि बेटा हीट जो है अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना, इट इज अ पाथ फंक्शन। हीट इज अ पाथ फंक्शन। हाँ, एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी बट एक सेकेंड, yes, so let's see. So I think we were talking about the path function. Actually heat is a path function. Why I call it a path function? Because heat cannot be obtained from initial to final state. It is obtained by the change in heat is obtained by the path by which state is changed. अगर कहीं पर भी कोई thermodynamic process हो रहा है and in that particular thermodynamic process there is a change in heat, so it is not necessary that we can calculate the change in heat by initial and final position. We can calculate the change in heat by the path by which the state has been changed. So that's why we consider the heat as a path function. तो इसमें अपने सिलेबस में बेटा दो ही path function दिए हुए हैं, one is heat and second is work. So remember this thing, work and heat both are path function, and rest of the physical property which we are going to study in this chapter all are state function. सभी state function है, चाहे हम एंट्रोपी की बात करेंगे, आगे एंथैल्पी की बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, गिब्स एनर्जी, so all are state function, only two are path function, that is and heat and second is work. Okay, so ये चीज ध्यान रखनी है। एंड वन मोर थिंग, द यूनिट ऑफ हीट, अगर हम यूनिट ऑफ हीट की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट यूनिट ऑफ हीट। एक्चुअली वर्क एंड हीट बोथ कैन हैव द सेम यूनिट, बिकॉज वर्क भी एक एनर्जी की ही फॉर्म है, बिकॉज एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दैट मीन्स बोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम यूनिट, दोनों को आप एक यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यूनिट की अगर हम बात करते हैं, यूनिट ऑफ हीट, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैलोरी, ठीक है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैलोरी, इसको आप कैलोरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट बाय जूल, ठीक है, इसको आप जूल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक है, वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। So these are the unit of heat. Heat की यूनिट है, heat can be expressed in joule. Yes, what happened बेटा? हाँ, वो राउंड ऑफ करके दिया जाता है एक्चुअली, हाँ उसको राउंड ऑफ करके दिया गया बेटा, ठीक है ना, बट यू कैन यूज 4.18, ठीक है, 18 यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पर 8, बिकॉज इट इज मोर देन 5, ये 5 से ग्रेटर है, तो इट कैन बी रिटर्न एज 4.12 क्या 4.2, इट कैन बी रिटर्न एज 4.2, क्योंकि 18 जो है उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, लास्ट की डिजिट को हटाएंगे, उसका राउंड ऑफ करेंगे तो आगे वाले डिजिट जो है वो 1 इंक्रीज हो जाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यस, नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, फर्स्ट law of thermodynamics. Okay, first law of thermodynamics. So what is first law of thermodynamics? I think most of the students already know about the first law. It is very common law and it states that energy can neither be created nor be destroyed. Energy can be changed from one form to another form. एनर्जी को न तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न ही आप क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो लेट मी राइट इट। इसको हम कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. It can be converted, yes,
बिल्कुल, वो बता रहा हूँ, वो तो कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ, ओके, एंड दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। एंड देयर इज आल्सो अ ऑल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ इट, इसका एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट भी है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, ओके, और इट कैन बी रिटन एज द टोटल एनर्जी of the universe remain constant, okay, total energy of the universe remain constant, I mean to say, इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझना कि टोटल यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट कैसे रहती है। जैसे मान लीजिए राजस्थान में, सपोज इन राजस्थान रीजन द सडनली द टेम्परेचर इंक्रीजेस बिकॉज इन समर डेज, ओके, सो somewhere in the world, somewhere in some part of the world, obviously the temperature will decrease, क्योंकि जितना टेम्परेचर राजस्थान में बढ़ा है कहीं ना कहीं उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज हो गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी यहाँ इंक्रीज हुई है कहीं ना कहीं उतनी ही एनर्जी क्या हो गई होगी, डिक्रीज हो गई होगी। तो इसलिए पूरी एनर्जी यूनिवर्स में जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दिस लॉ कैन बी स्टैब्लिश्ड मैथमेटिकली, इसको हम लोग मैथमेटिकली स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देख लेते हैं, इस लॉ को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। इट्स वेरी सिंपल, एक सेकेंड, लिसन केयरफुली, यस। So right now we are talking about the mathematical formulation of first law of thermodynamics. हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ है उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, कि हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से बना सकते हैं। एंड वी स्टडीड दैट कि इंटरनल एनर्जी को हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज इंटरनल एनर्जी बाय टू वेज। फर्स्ट इज बाय सप्लाइंग हीट। इफ यू गिव हीट टू द सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, अगर आप किसी सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो भी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम यही काम करेंगे। सपोज वी हैव अ सिस्टम एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज U1। इस इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की वो U1 है। इफ वी हीट द सिस्टम बाय गिविंग Q एनर्जी, अगर इसको आप Q हीट देते हैं सपोज, और Q हीट देख करके इसको आप हीट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका सिस्टम की जो एनर्जी होगी, दिस Q विल इंक्रीज इनटू इट, तो इसमें इंक्रीज हो जाएगी या कहेंगे ऐड हो जाएगी, तो इट विल बिकम U1 प्लस Q, ओके। एंड आफ्टर दैट वी परफॉर्म W वर्क ऑन दिस सिस्टम। इस सिस्टम पर हम W वर्क करते हैं तो वर्क की जो एनर्जी होगी वो भी इसमें ऐड हो जाएगी, इट विल बिकम U1 प्लस Q प्लस W। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी आपके पास, U2 है, इट विल बी इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W, ओके। अगर इस U1 को मैं यहाँ साइड चेंज करता हूं, then it will become U2 minus U1 equals to Q plus W. So it is the change in internal energy. U2 minus U1 is the change in internal energy. Okay, so it will be represented by del U. So del U equals to Q plus W. Okay, so this is the mathematical expression of first law of thermodynamics. So we can write in it in words. इसको words में लिख सकते हैं। Change in internal energy is equal to the heat absorbed by the system and the work done on it. उस पर जो वर्क होगा, ठीक है, प्लस में W भी है, ध्यान रखना, उस पर जो वर्क होगा और Q जो उसने हीट एब्जॉर्ब की है, वो दोनों ही उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे। सो रिमेंबर दिस थिंग, ओके। यस, वांट टू रिपीट योर वर्ड। It will be in numeric value. It will be in numeric value or the unit of the work will be joule or calorie. इसकी जो यूनिट आएगी वो जूल में या कैलोरी के अंदर आएगी, ठीक है बेटा, ओके। तो चलिए,
तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम ये जो वर्क की बात कर रहे हैं, सपोज दिस इज अ एक्सपेंशन वर्क, है ना, ये एक्सपेंशन वर्क है। तो जब एक्सपेंशन होता है तो कोई गैस एक्सपेंड होती है, सपोज आपने उसको हीट दी है, क्यों हीट दी है सपोज, तो वो वर्क, सपोज मान लीजिए वो गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही है। अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो उसका वर्क जो होगा वो कैसा होगा, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव। हमने यही पढ़ा है एक्सपेंशन में, क्योंकि गैस जो है या सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पर वर्क करता है, तो नेगेटिव होगा। तो मैं यहां पर कौन सी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू प्लेस करूंगा इसमें फॉर्मूले में, और नेगेटिव वैल्यू प्लेस करूंगा तो डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल वी। तो वो फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा, एंड दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर द एक्सपेंशन वर्क। ठीक है ना, ये जब गैस एक्सपेंड कर रही है तो उस समय हम इस फॉर्मूला को यूज में ले सकते हैं। अब रिमेंबर वन थिंग, अगर मान लीजिए ये तो एक्सपेंशन के लिए है, फिर चाहे वो एक्सपेंशन के लिए हो या कंट्रैक्शन के लिए हो, अगर हम ये कह दें कि इफ डेल वी इक्वल्स टू जीरो, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम वर्क जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर करा दें, ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कराने पर क्या होगा, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस पी इंटू जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। और जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया है तो डेल यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो केवल किसके इक्वल होगी, गिवन हीट के इक्वल होगी, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो उस समय हम इसको ना क्यू वी लिख देते हैं, जब हम वॉल्यूम को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ वी विल बी जीरो। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि डेल यू की वैल्यू जो है वो क्यू के इक्वल हो जाएगी। तो यह एक सिंपल सा स्टेटमेंट आ जाता है कि अगर आपको कहा जाए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करें, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वी कैन डिफाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय दिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे काम आने वाली है। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है बेटा, हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट, इक्वल टू द हीट given to system at constant volume, okay, at constant volume। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई भी सिस्टम को जितनी हीट दी है आपने, तो उसकी हीट की वजह से जो इंटरनल एनर्जी जो उसमें चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होती है। ठीक है, तो हमेशा इंटरनल एनर्जी को हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही देखते हैं। अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं तो वट एवर चेंज इज गोइंग ऑन इन अ सिस्टम, ठीक है, एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है, तो जितनी भी उसकी एनर्जी चेंज हो रही है, जो हीट चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी कहेंगे। ठीक है।